Dear student, today we discuss on the topic relation between electric current and drift velocity. In last lecture, we already discussed about the current, current density, drift velocity and mobility. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन रहेगा। तो देखिए हम कैसे इसको डिराइव करते हैं। हम एक कंडक्टर, ये एक कंडक्टर लिया हमने जिसकी लेंथ है वो L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसमें इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे मूवमेंट करते हैं। We take electric conductor having dimension L and A. L be the length of conductor and A be the area of cross section. When no potential applied across the terminal of this conductor, then average velocity of free electron inside it remains zero and no net current flow in this wire. We already know very well. But when we apply potential or voltage with the help of battery, its one terminal connect to high potential and one other terminal connect to low potential. Then what happen here? These electron under the effect of this voltage, electric field set up and they move opposite to the side, lower potential to higher potential, and they move with a definite average velocity. This is known as drift velocity. Reason behind this motion is under the effect of electric field, electrostatic force come into play, and that electrostatic force accelerate these, and they move in the same direction, or they aligns from terminal x to y to x. This is x, this is y terminal. So we write here, let us take a conductor wire of length L and area of cross section capital A, small n be the number of electron per unit volume, or we can say that electron density. N be the number of electron per unit volume present in XY wire or XY conductor. When no any external potential applied, then they move in random motion in all direction and will average velocity be zero.
be 0. When no field applied, there is, जब हमने फील्ड अप्लाई नहीं की इसके ऊपर, तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई नहीं की तो ये मोमेंट नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे नहीं है, दे कंटिन्यू इन मोशन। वो मोशन में है, लेकिन उनका मोशन इस तरीके से है कि वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। इस बात को समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखें। पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझाया कि कैसे ये इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे। और वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब हम वेक्टर सम करते हैं, सब की वेलोसिटी का सम करते हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, और एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी? आपकी 0। तो ये बात ध्यान रखें। तो हमने अब क्या करना पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ with the help of battery potential, we applied across XY terminal इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल, इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल under the effect of field, under the effect of external field, they move from Y to X terminal, and their final average velocity called drift velocity, VD. Then electric current flow in the wire is I is equal to Q upon T. We know very well that this is the formula of electric current, and electric current is equal to charge upon time. Here Q charge and T time. So find out the relation between electric current and drift velocity. So basic formula is this. We want to calculate value of charge, how much charge inside this electric conductor, and how many time taken by this wire having velocity is Vd. They move in this direction, and here electric field E set up due to this potential. Under this electric field, they move from low potential to high potential. Then time taken by electron to move from Y to X is, then time is equal to time t is equal to velocity, distance upon velocity. Formula is distance upon velocity, and distance is how much distance covered from Y terminal to X. That distance is equal to length of this. This is L, and velocity is drift velocity. So we can say that T is equal to
L upon Vd. Vd represent here drift velocity. This is also called drift velocity. This is equation second. Here we find out the value of time period. Then now it is necessary to find out the value of electric charge in this conductor. We know that 1 unit volume have number of electron is equal to small n. Here given is this electron density, number of electron per unit volume. It means that a unit volume of this conductor have the number of electron small n, and total volume of this conductor is AL, area into length, AL. Unit volume have number of electron is equal to NaL. These are the number of electron. By using quantization law, here I explain from this. We know that charge is equal to, इलेक्ट्रिक चार्ज किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. This is the formula, and this formula comes from quantization law. Put the value Q is equal to, charge is Q, number of electron, these are the number of electron, NaL into charge of one electron is small e. So finally we write that Q is equal to NeAl. This equation is third equation, we can say that. If we individually calculate the time taken by these electron move from Y to X, and also find out the value of charge or how much charge inside this conductor, by knowing the value of Q and T, put into equation first and easily we calculate value of electric current. Put value from equation second and third into equation first. I is equal to, put the value of Q from equation third is NeAl upon value of time from here L upon Vd. L cancel to L cancel to L. Then remaining part is I is equal to NeAV of D. NeAVD. This is the relation between electric current and drift velocity. Finally, I am writing here, this is relation between current and drift velocity. Current and drift velocity. This is the relation between electric current and drift velocity. अगेन मैं रिवाइज कर देता हूं कि कैसे है ये. हमने एक कंडक्टर लेना है, क्योंकि ये रिलेशन कंडक्टर के लिए पॉसिबल है हमारा. तो हम कंडक्टर लेते हैं, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें तो उस समय ये इलेक्ट्रॉन आपके कंटिन्यू मोशन में रहेंगे, लेकिन एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पाते. फिर हमने क्या किया कि एक्सटर्नल फील्ड लगाई, किसकी हेल्प से, वोल्टेज V बैटरी की हेल्प से. इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E सेटअप हुई. ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्ज है हमारे इलेक्ट्रॉन
charged particle, they move under the effect of electrostatic force and they accelerate under the effect of electrostatic force. और जब ये accelerate करेंगे तो इनकी velocity एक definite direction में align हो जाएगी और उस average velocity को हम क्या कहते हैं, drift velocity कहेंगे। फिर जब ये इस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं और टोटल लेंथ कितनी है, ये L, हमने इसका डायमेंशन L लिया हुआ, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, और इलेक्ट्रॉन कहां से मूव कर रहे हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। और हम चाहते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल इसमें मूवमेंट करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। सो फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक करंट इज I is equal to Q upon T. Here Q is electric charge that follow inside the conductor and T be the time taken up to which they can flow. So first we find out the time and then find out the value of charge. Time taken by this free electron move from Y terminal to X terminal is, formula of time is distance upon velocity, and distance between Y and X or X and Y be the L, and velocity is Vd. So we find out the value of time is equal to L upon Vd. Now second step is to find out the charge inside this conductor. So we know very well here N be the number of electron per unit volume. This is the constant quantity. For particular metal, for particular material, this value may be fixed. Number of electron per unit volume mean electron density be the constant quantity for a particular material. If we change the material, then electron density also change. So for a particular material, number of electron per unit volume be fixed. It means that 1 unit volume have the number of electron is equal to small n. It means that n, these are the number of electron present in 1 unit volume, and we take the wire having volume A into L, area into length is volume. So number of electron present in AL volume is n into AL. But by using the quantization rule say that total charge must be equal to the integral multiple of charge of 1 electron. So here is the number of electron and here charge of 1 electron. Number of electron is NaL. We have already find out the value of number of electron from here. And E be the electron charge and put this value. And we find out the value of charge inside this conductor. Put into first equation and finally we get I is equal to NeAVd. This is the important relation between electric current and drift velocity. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम इससे डिफरेंट रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे और आप देखते जाएं कि कैसे कैसे रिलेशन बन सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला आपका I इज इक्वल टू NeAVd रहेगा। तो मैं आपको इसके डिफरेंट फॉर्मूले समझा देता हूं कि आपको कैसे इन रिलेशन को समझना है, आप लोगों को कि कैसे कैसे ये रिलेशन बन सकते हैं। और ये तभी समझ में आएंगे आप वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। और जब आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन भी मिलता है। तो देखिए अब हम इसके डिफरेंट फॉर्म देखते हैं इस बेसिक फॉर्मूले की। ये आपका फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला I इज इक्वल टू NeAVd। मैंने इस फॉर्मूले को यही छोड़ दिया। हम डिफरेंट वे में कैसे लिख सकते हैं, यहां से मैं इसके डिफरेंट वेराइटीज बताता हूं आपको। देखिए डिफरेंट वेराइटीज का मतलब है कि इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे। We know very well, we know that drift velocity, we know that drift velocity have the formula in last video। आप मेरे पिछले वीडियो पे जाएं और वहां से आप देखें तो मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला बनाया था, Vd इज इक्वल टू माइनस ई कैपिटल E टाउ अपॉन m। ये हमने एक फॉर्मूला बनाया था। मैं एक बार फिर बता देता हूं आप लोगों को कि ये कैसे बनाया था। हमने बात की थी कि जो एवरेज फाइनल वेलोसिटी निकाली थी, Vd बोलते थे जिसको, ये एवरेज फाइनल वेलोसिटी है। ये a इंटू एवरेज टाइम के बराबर आई थी। a यहाँ पे एक्सेलरेशन था और एवरेज टाइम
ये T1 प्लस T2 प्लस T3 डैश डैश Tn अपॉन n एवरेज टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ये एक्सेलरेशन कैसे आया? ये जो चार्ज पार्टिकल है हमारे अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये मूव करते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू जो होती है हमारी माइनस ई इंटू ई होती है। ये चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कूलाम फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहाँ चार्ज कौन है? इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव साइन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है। तो ये रिलेशन है आपका। अब यहां से देखिए फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन और माइनस ई ई, और एक्सेलरेशन क्या हो गया? माइनस ई कैपिटल ई अपॉन एम। इस फॉर्मूले को अगर यहां रख दें तो ऊपर वाला फॉर्मूला आपका बन जाएगा। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की है कि ये आया कहां से है। तो आप इसको मेरे लास्ट वाले वीडियो में जाके अच्छे से बनाना भी सीख सकते हैं। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को ले लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? वी डी इज इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, यानी हम इसके साइन की बात नहीं करेंगे। और इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं यहां रख दूं, देन इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा हमारा? एन ई ए, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला रखना आपको। रिलेशन ये है आई एन ई ए बी डी। तो इस फॉर्मूले को इसमें रख के देखो क्या बन जाएगा? ई कैपिटल ए टाउ अपॉन एम। और इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये आपका रिलेशन हो गया एन ई स्क्वायर ए टाउ अपॉन एम इंटू ई। ये आपका रिलेशन है। इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड फील्ड इंटेंसिटी। एक रिलेशन ये बन गया आपका फील्ड इंटेंसिटी के बीच में। और भी इसका दूसरी फॉर्म और बता सकते हैं हम। न्यू फॉर्म बताता हूं यहाँ से एक और तरीका देख लो इसका। नए नए रिलेशन जैसा क्वेश्चन में पूछा जाए वैसा ही लिख देंगे। वी नो दैट how electric field intensity related with electric potential. Electric field potential V is equal to electric field intensity, electric field intensity capital E into separation between टू पॉइंट। और कंडक्टर में दो पॉइंट क्या थे? एक एक्स और एक वाई, उनके बीच डिस्टेंस था वो एल था। डिस्टेंस एल, डिस्टेंस एल। और v की वैल्यू जो आपकी बनेगी, ये मैंने कैपिटल V है ये, E इंटू एल। और यहां से अगर E निकालना चाहो तो E क्या बन जाएगा? V अपॉन एल। इसको उठा के ऊपर वाले रिलेशन में रख दो। इसको मैं फोर्थ इक्वेशन कह देता हूं, और पुट इनटू इक्वेशन फोर्थ, पुट इनटू इक्वेशन फोर्थ। देन क्या बन जाएगा ये रिलेशन? अगर आप देखें इसको तो I इज इक्वल टू एन ई ए टाउ स्क्वायर अपॉन एम, और यहां हो गया V अपॉन एल। और इसको रीअरेंज करो तो I इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एल, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ए इंटू एल इंटू वी। यहां से आप देख पाएंगे ये रिलेशन करंट और वोल्टेज के बीच में है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल। करंट एंड पोटेंशियल, ये रिलेशन बन सकता है। और रिलेशन देख लीजिए कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। मैं यहाँ एक नया रिलेशन बनाता हूं। अब इसी क्वेश्चन को देख लीजिए।
इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, 4 इक्वेशन में हम डिवाइड कर देते हैं। इसी इक्वेशन 4 ले लीजिए पहले, आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम ए ई। हम दोनों साइड एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई हो जाएगा। और ये आपका एक नई क्वांटिटी है, ध्यान हो तो करंट डेंसिटी बोलते हैं इसको, और ये आपकी जे से बन जाएगी, जे इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ई। जे है यहाँ मैं बता देता हूं, जे करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी एक नया रिलेशन बन गया ये यहाँ से। और इसको थोड़ा सा और अच्छे भाव में लिखो तो ये आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। एन ई स्क्वायर टाउ को लिखा जाता है जे इज इक्वल टू सिग्मा से। यहाँ जो ये सिग्मा होगा ये कंडक्टिविटी है। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो ये इसी को एक बात और ध्यान रखना, तो ये फॉर्मूला आया हमारा, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। इसके क्या क्या नाम है वो नाम बताता हूं मैं। पहली चीज है इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर लॉ, और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम लॉ कह लो, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसी का नाम है। इट इज आल्सो कॉल्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। और ये ध्यान रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक करंट इस फॉर्मूले को ड्राइव कीजिए। ये ध्यान रखना है आपको, ये कौन सा फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। और आगे देख लीजिए, हम और रिलेशन बना सकते हैं, इस फॉर्मूले से बना सकते हैं हम। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नया फॉर्मूला बनवाता हूं मैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें आप सभी। एक फॉर्म कैसे हो सकती है, मैं इसको यहां से हटा दूं एक बार, आपने यहां तक देख लिया होगा इसको। ये इक्वेशन मैं लेके चलूंगा, इस इक्वेशन को यहां से मैं इसको हटा देता हूं। इस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं, यहां लिखूंगा नई इक्वेशन से, वी नो दैट, ये इक्वेशन आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू ए एल वी। और इसको रीअरेंज करके देखो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ये v को इधर ले आओ और i की फॉर्म में इधर लेके जाओगे तो m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ l अपॉन ए आई। ये आपका रिलेशन बन जाएगा इस तरीके से। इस इक्वेशन का कोई नाम दे दो, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको 7th इक्वेशन कह दिया, ऐसा मान लो। यहां से आप देख पा रहे होंगे कि वी नो दैट, वी नो फॉर कंडक्टर, फॉर कंडक्टर V is equal to RI. This is Ohm's law. By using Ohm's law, हम आगे भी इसकी चर्चा करेंगे। By using Ohm's law. This is equation 8. Compare equation 7 and 8. This is equation 8 equation. R is equal to, compare equation 7 and 8. R is equal to M upon N E square tau L upon A. ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। दिस इज 9th इक्वेशन और दिस इज 10th इक्वेशन मान लो, फिर कंपेयर कर लो।
फ्रॉम इक्वेशन 9th and 10th, rho is equal to m upon n e square tau. Here rho is resistivity of conductor. ये resistivity, reciprocal of resistivity is conductivity. So sigma is equal to 1 upon rho. यहां लिख दूंगा मैं conductivity is reciprocal of resistivity. ये आपकी रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, इसका रेसिप्रोकल कर दो कंडक्टिविटी, और यहाँ देख लीजिए इस इक्वेशन को, वहां पर रेसिप्रोकल है इसका, ये रहा n स्क्वायर टाउ अपॉन m, तो ये क्या होगी यहाँ पे कंडक्टिविटी हो जाएगी। ये इतने टाइप से आप इन फॉर्मूलों का मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एग्जाम में जैसा पूछा जाए उस हिसाब से आप इसको सोल्व कर लेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें।